Yes, beta. A very good morning, first of all. Yesterday we had a discussion regarding development, right? Different factors affecting development, different points regarding development, right? What development is with meanings, measuring development, gross national product, gross domestic product, gross national income. Yes, Akansha, can you tell me what is gross domestic product? See, beta, when we talk about gross national product here, yes, Chimnani, very true. Gross national product is a measure of total value of goods and services when they are officially recorded in economics book in a particular year, in a financial year given to them is known as gross national product. It includes things produced. Please concentrate. It includes things produced in and outside the country. Gross national product includes the goods produced inside and outside the country. That is gross national product. बेटा national नाम आ रहा है तो आप खुद समझ सकते हो, right? When we talk about gross domestic product, मतलब goods produced only within inside borders of our country. When goods produced inside our country boundaries, उसको बोलते हैं gross domestic product. ओके जब हम ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते हैं तो मॉनिटरी वैल्यू जो हमारी कंट्री में से इनकम मिली प्लस जो इनकम हमको बाहर साइड से जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किए थे आउटसाइड द कंट्री वेयर वी डिड इन्वेस्टमेंट वहां से जो हमको फॉर्म ऑफ मनी मिलता है फॉर्म ऑफ इनकम मिलता है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम. क्लियर? नाउ क्लियर ऑल द थ्री टॉपिक्स? Okay. Yesterday we had this quote. I'll read it once again for you. The global challenges of tomorrow drive our work today. We shape sustainable development worldwide. राइट जो ग्लोबल चैलेंजेस जो हमारे कल के लिए है वो हम आज से शुरू करते हैं. हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड वाइड शेप देते हैं. Yes, students. First of all, before starting anything today new, we will just revise the meaning of sustainable development. Can anybody tell me? Okay, I'd like to ask Aditi. Can you tell me in your own words what is sustainable development? You are absolutely correct. Sustainable development means when something which is short-lived but can continue in future also. What resources we are using today, we have to use in a way that it can be preserved and saved for our future generation also. वो प्रिजर्वेशन को वो कंजर्वेशन को जो फ्यूचर जनरेशन भी एडवांटेज ले सके उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेपेटो, I'll read out the definition according to this economist. Sustainable development is a development strategy that manages all the natural resources and human resources as well as financial and physical assets for increasing long-term wealth and well-being is what is sustainable development. Right? All the human resources के साथ all the wealth, all the financial resources, all these resources when in present are used in a very proper way that it can be saved for the future generation or for the further use is called sustainable development. Yes, students? Clear?
Now, Krishna Sadhwani, can you repeat what is sustainable development? Very good. Correct answers by every one of you. Okay, beta. So now when sustainable development का meaning clear है, we will move forward for the features of it. Right? Features of sustainable development की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले है कि sustained rise in the real per capita income and quality of life. When there is real per capita income, when there is rise in quality of life and real per capita income, राइट जब पर कैपिटा इनकम में बढ़ावा हो रहा है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बढ़ावा हो रहा है, उसको बोलते हैं इज वन ऑफ द फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐड होता है, दैट इज रिडक्शन इन पॉल्यूशन। क्योंकि पॉल्यूशन जो है हमारा प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी हार्म करता है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस द पॉल्यूशन वाली चीजें, जो चीजों से पॉल्यूशन फैल रहा है वो चीजों को स्टॉप करो या रिड्यूस करो। कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल what in a country as a whole in our India is being done to reduce the pollution? What step are being taken? बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, odd and even system in Delhi for vehicles is one of the major steps to reduce pollution, especially जो vehicles से फैलता है, right? देखो बेटा, इतने टाइम अगर हमने सिर्फ 2 महीने हमने व्हीकल्स वगैरह यूज नहीं किए, पॉल्यूशन नहीं हुआ केमिकल्स का और व्हीकल्स का, ओजोन लेयर पूरा रिकवर हो गया, पूरा ओजोन लेयर। कैन यू जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 2 महीने हमने ये सारी चीजें, तो अगर हम इन चीजों को केयरफुली ध्यान से यूज करेंगे तो पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, और पॉल्यूशन कंट्रोल होने से नेचर कितना अच्छे से प्रोटेक्ट होगा, राइट। एंड बेटा, नेचर ना ही आपने बनाया है, ना ही मैंने, ना ही आपके लिए पर्सनली है, ना ही मेरे लिए पर्सनली है। नेचर पे ना ही आपका सिर्फ हक है, ना ही मेरा सिर्फ हक है, सबका हक एग्जैक्टली इक्वली है, राइट। इसी तरह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी नेचर पे इतना ही हक बनता है। आई कम टू यू, डू यू वांट दैट आपके बच्चे हो तो वो पॉल्यूशन में पैदा हो? आई मीन इतनी बड़ी कंट्री में इतना फैला फूला पॉल्यूशन हो, वहां पे हमारे बच्चे सरवाइव करें? डू यू पर्सनली लाइक दैट? वुड यू पर्सनली लाइक इट? यस और नो? नो ना, राइट। तो अगर हम इंडिविजुअली भी अगर कोई स्टेप लेना शुरू कर देते हैं पॉल्यूशन को हटाने का, एनवायरनमेंट को बचाने का, तो क्या उस एनवायरनमेंट में फर्क नहीं आएगा? That is the biggest feature of sustainable development, that we have to preserve our environment, that we have to protect our environment. हमको हमारे एनवायरनमेंट को अभी से पॉल्यूशन फ्री बनाना होगा, तब जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स उठा पाएगी, राइट बेटा। नेक्स्ट इज रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सी बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज हमको नेचर में से मिलते हैं, हम उसको नहीं बनाते हैं, तो हमको नेचुरल रिसोर्सेज भी इस तरह से यूज करने चाहिए कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके काफी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डे टू डे डेली यूजेस में लाते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहली बात तो बहुत टाइम लगता है उनको बनने में, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग स्पैन ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स जो बनते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स की मदद से बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को डिकम्पोज होने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं,
राइट. सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. हमारी फ्यूचर जनरेशन इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगी अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं किया तो. राइट. ओके. इसके अलावा वन मोर फीचर इज देयर ऑफ नेचुरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, that is to fulfill requirements of future generation. Have you seen one of the ad टीवी में आती है, राम कपूर जो है ना, थोड़ा मोटा मोटा है, उसकी एड है. वो और उसका बेटा दोनों ट्रैफिक सिग्नल पे, वो उसको स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, वो दोनों कार में बैठे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे. एंड लुकिंग एट ट्रैफिक सिग्नल का सीन, उसका जो बेटा है वो राम कपूर को बोलता है कि पापा मैं बड़ा होके साइकिल की दुकान खोलूंगा. हैव यू सीन दिस एड? आपको पता है इसका क्या रिप्लाई आया होगा जब उसके पापा ने पूछा कि क्यों साइकिल की, हमारा तो इतना बड़ा बिजनेस है कार की दुकान खोलना. कैन यू इमेजिन उसने क्या रिप्लाई दिया होगा? यस द्वारा प्लीज. परफेक्ट. वो बोलता है कि मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक सिग्नल बंद है तो भी लोग पेट्रोल को वेस्ट करे ही जा रहे हैं. इतनी सारी गाड़ियां ऑन है जहाँ पे पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, तो आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल तो बचेगा ही नहीं. तो मैं साइकिल खोलूंगा तो मैं बेनिफिट में रहूंगा ना. राइट. सो बेटा ना चाहिए कि नहीं? शुड वी सेव द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन? नॉड योर हेड yes or no. Should we save the resources for future generation? Yes. Nod your head. नॉड योर हेड का मतलब और नो में ऐसे जवाब दीजिए, यस और नो. इट्स लाइक नॉड योर हेड. हाँ, दैट्स गुड. ओके. So, this was the last topic of the chapter, sustainable development and its features. Okay. So, now I would like Aditi to tell me what are the features of sustainable development. And yes, Thora. Revised, yes. Okay, one more. Okay, importantly, नहीं, दो ही चैप्टर नहीं आ रहे तुम्हारा. हिस्ट्री में तो चार हैं ही.